قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا تعلق جو ہے اس منسٹری کے ساتھ بڑا پرانا ہے، کیونکہ میرا بپتسمہ جو ہے وہ پاسٹر صاحب نے کیا تھا 20 سال کی عمر میں، اور اب میں 52 کی ہو گئی ہوں۔ تو زیان منسٹری کے ساتھ میرا تعلق نہ صرف فیملی کا ہے بلکہ ایک استاد اور شاگرد کا بھی ہے، کیونکہ جب کوئی کہیں پر کوئی مشکل آتی ہے ہم ضرور پاسٹر صاحب سے شیئر کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ اور جہاں رہی میری زندگی کا تعلق، تو زندگی کو خداوند ایسے لے کے چلا کہ آج خداوند نے برکتوں سے بھر دیا۔ ہاللیلویہ۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، بہت مشکل وقت بھی دیکھا، بہت دکھ اور بیماری بھی دیکھا، لیکن خداوند نے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں پورا کیا۔ اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مانگتے اور پاتے نہیں کیونکہ اچھی نیت سے نہیں مانگتے۔ کلام بڑی دیر میں سمجھ آتا ہے بعض اوقات، ہم بھی مانگتے تھے سب کچھ جو انسان چاہتا ہے، لیکن جب مانگا اس کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کے کاموں کے لیے، تو اس نے ایسا بھرا کہ اب پیالہ لبریز ہوا، اور وہ پیالہ اب دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ایسا بھرا کہ اب وہ شفا جو اس نے مجھے دی، اب وہ میرے ذریعے اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری جو زندگی تھی وہ 20 سال کی عمر میں جب میں نے بپتسمہ لیا پاسٹر صاحب کے ہاتھوں، تو پاک روح اسی دن ملا، ہیلنگ پاور اسی دن ملی، لیکن کیونکہ ذہن چھوٹے اور تعلیم ویسی نہیں تھی تو ہم اس چیز کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائے، لیکن پھر زندگی چلتی رہی، لیکن خداوند کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھا، ساتھی ملا زندگی کا تو وہ بھی پاک روح سے معمور اور خداوند کی برکتوں سے معمور، اور پھر خداوند نے ٹھہرے رہنے کے لیے کہا، ٹھہرے رہے، اور یہ پچھلے 6-7 سال سے خداوند جو ہے وہ پورے زور کے ساتھ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری جو گواہیاں ہیں اگر میں دینا شروع کروں تو شاید سارا وقت اسی میں گزر جائے، لیکن کچھ بڑی گواہیاں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کلام کو شیئر کرنے سے پہلے، کیونکہ میری زندگی کی وہ گواہیوں سے ہی خداوند نے مجھے یہ کلام دیا کہ جیسے میری زندگی میں خداوند نے کام کیا وہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرے۔ ہاللیلویہ۔ میرا گھٹنوں کا جو مسئلہ تھا کہ میں بیٹھ جاتی تھی تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، اور اس وقت میری عمر صرف 46-47 کے قریب تھی۔ میں بیٹھتی تھی، میرے بچے دونوں بازوؤں سے گھسیٹ کے مجھے اٹھاتے تھے، اور پھر خداوند کے حضور جھک کے کہا کہ خداوند تو ہی شفا دے گا اور تو ہی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک دن اسی طرح پریئر میں خداوند نے مجھے ایکس رے کی طرح دکھاتے ہوئے کہا لے تیرے گھٹنے نئے ہو گئے، وہ کارٹلیج جو ڈسٹروائے ہو رہی تھی، خراب ہو رہی تھی، وہ دوبارہ سے خداوند نے ریپیئر کی اور نئی بنائی۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد میرا فروزن شولڈر جو ہے یہ فروزن ہو گیا، فزیو تھراپی بھی کرائی، میڈیسن ملی، کچھ نہیں، کیونکہ یہ کام کس نے کرنا تھا؟ خداوند نے۔ اور پھر وہی ہوا، جھکے اس سے مانگا، اور آج خداوند کے فضل سے میں اسی ہاتھ سے ہاللیلویہ کا نعرہ لگاتی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ زندگی کی یہ چھوٹی سی گواہیاں، بچے میرے کلام سنتے، دعا میں ماں باپ کو دیکھتے جوان ہوئے۔ میرا بڑا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر ہے، چھوٹے نے ACCA کیا ہے، سب سے چھوٹا بھی 9th میں ہے۔ لیکن جو بات میں بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ جب سیلری گھر آتی ہے تو جب ہم دائی کی یا خداوند کا حصہ نکالنے لگتے ہیں تو اکثر لوگوں کے دل گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ شاید وہی 1010 میں سے وہ 1000 آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہماری ضرورت کا ہے، لیکن وہ کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ روز بوتے ہیں تو بچوں نے بونا شروع کیا، اور آج اس بونے نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے کہ
मेरे बड़े बेटे को US कंपनी में भी जॉब कर रहा है, न्यूज़ी लैंड के साथ भी जॉब कर रहा है, प्लस उसने यहाँ भी अपना ऑफिस बनाया है और वो तकरीबन 6-7 लोग उसके पास यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। छोटे बेटे को खुदावंद ने सरफराज किया। जब लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, जितना मर्जी पढ़ लो काम नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब खुदावंद के साथ जुड़ते हो तो आपके लिए सब कुछ वाफर है। हालेलुया, सब कुछ वाफर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो कमी होने देता नहीं है। ठीक है, वो कमी होने देता नहीं। सिर्फ फर्क कहाँ आ जाता है? हमारे ईमान में और करने में, ईमान में और करने में। आज जब मैं बहन से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने आना है, तो उस वक्त जब मैंने दुआ में रखा कि खुदावंद तू ही बता कि मुझे वहाँ क्या कहना और क्या बोलना है, क्योंकि ये मेरी एक आदत बन गई है कि मैं खुदावंद से पूछती हूँ, क्योंकि उसकी रूह के बगैर हम कुछ नहीं हैं। जब पाक रूह आपको गाइड करता है तो वो आपको वो दिखाता है जिसकी ज़रूरत सुनने वालों को होती है। ठीक है, तो जब मैंने कलाम का मांगा कि खुदावंद मुझे वो कलाम दे जिससे जो सुनने वाले हैं वो सुन के चले ना जाएं, बल्कि क्या हो, जिंदगियां बदलें, हम जिंदगियों को बदल के जाएं और कोई भी ऐसी कुव्वत इसे चुराने ना पाए। वो कुव्वत कब चुराती है? जब हम ऊपर ऊपर से ही सुनते हैं और ऊपर ऊपर से ही सुन के जहां से सुना वहीं छोड़ के हम चले जाते हैं। आज हम सुनेंगे भी, इसको अपने दिल में जगह भी देंगे और इसके मुताबिक हम क्या करेंगे? फल भी लेकर आएंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है? खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने हमें चुना और ठहराया ताकि हम फल लेकर आए और हमारा फल हम में कायम रहे। वो चाहता है कि हम फल लेकर आए और वो फल कायम रहे, हमारे अंदर रहे, उसे कोई चुराने ना पाए, वो बढ़े। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से जब खुदावंद से मांगा कि खुदावंद अता कर कि क्या कहा जाए और क्या बोला जाए, तो खुदावंद ने जो आयत आज के लिए दी वो है याकूब का आम खत, उसका 2 बाब और उसकी 26 आयत। हमने बहुत दफ़ा ये आयत सुनी भी, पढ़ी भी और बोली भी है। याकूब का आम खत 2 बाब और उसकी 26 आयत। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आमीन, आमीन। आज की जो ये आयत खुदावंद ने मुझे, मेरे और आपके लिए दी, इसमें जो याकूब खुदा का बंदा है वो तशबीह दे रहा है 2 चीज़ों को। किस चीज़ को तशबीह दे रहा है? बदन को रूह के साथ और दूसरी तरफ ईमान को अमल के साथ। किस किस चीज़ के साथ दे रहा है? बदन को रूह के साथ और ईमान को अमल के साथ। 2 चीज़ें। अगर बदन में से रूह निकल जाती है तो पीछे क्या है? पीछे क्या है? कुछ भी नहीं, खाक, मट्टी, मुर्दा जिस्म। ठीक है। और अगर इसी तरह वो कहता है कि ईमान के साथ अमल नहीं है तो ईमान क्या है? मुर्दा। ईमान क्या है? मुर्दा। रूह निकली तो बदन में जान, और खुदा ने क्या किया है? बदन और रूह को क्या किया है? जोड़ा है। ये हम सब जानते हैं कि खुदा ने बदन और रूह को क्या किया है? जोड़ा है। जब हम पैदाइश 2 बाब और उसकी 7 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा, पैदाइश 2 बाब और उसकी 7 आयत, ए खुदावंद और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। इंसान जीती जान हुआ। साबित क्या हो गया? कि रूह के बगैर जिस्म कुछ नहीं है। और रूह किसने फूंकी? खुदावंद ने। ठीक हो गया। इसी तरह ईमान जो है
ایمان طے کرتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہوگا. ہم کس طرح سے ایمان کو پہچانتے ہیں؟ ایمان کہیں نظر آتا ہے؟ ایمان نظر آیا کہیں؟ کیسے نظر آئے گا؟ عمل سے. ایمان کیسے نظر آئے گا؟ عمل سے. جیسے ہم کھڑے ہیں تو ہم کس طرح سے کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ روح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ سے یہ بدن نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان بھی نظر نہیں آئے گا کسی کو. اب یہاں پر جب ہم غور کرتے ہیں، پالوس رسول کہتے ہیں کہ ایمان سے انسان کی پرکھ ہوگی. پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ کہ ایمان سے انسان کی پرکھ ہوگی. اب اگر ہم کہیں کہ یعقوب رسول جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے، تو کیا اس میں کوئی فرق آ گیا؟ پالوس رسول نے کہا کہ ایمان سے پرکھا جائے گا، اور یہاں پر جو یعقوب خدا کا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر مردہ ہے. بات ایک ہی ہے. بات کیا ہے؟ ایک ہی ہے، صرف اپنے نظریے سے پیش کی گئی. وہاں پر بھی جو بات کی گئی وہ ایمان اور عمل کی ہی ہے، اور یہاں پر بھی ایمان اور عمل ہی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم دونوں باتوں کے اس کو سمجھ چکے کہ ایمان جو ہے وہ نظر کیسے آئے گا؟ عمل سے. اب ہم کلام مقدس میں سے ہی ساری مثالیں لے لیتے ہیں، پھر ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلی مثال اگر ہم ابراہیم کی لیں تو کیا ہوا؟ ابراہیم سے کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے ملک کو چھوڑ دے، بہن بھائیوں کو، رشتے داروں کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کو لے اور وہاں جا جو میں تجھے دیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ آگے سے بحث کی، تکرار کی، کچھ کہا نہیں. کیا کیا اس نے؟ ایمان رکھتے ہوئے چل پڑا. ایمان رکھا اور پھر کیا کیا؟ عمل کیا. ایمان رکھ کے کیا کیا؟ عمل کیا. اب دوسری بات، خداوند نے کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو قربان کر. پھر کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا ہوا؟ ایمان اور عمل. ایمان رکھا اور عمل کیا. اب یوسف جس کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے اور فرعون کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ تو میرے ساتھ غلط کام کر، غلط تعلق بنا، تو وہ بھاگ گیا وہاں سے، جبکہ اس وقت کوئی لکھا ہوا کلام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن وہاں پر بھی کیا نظر آتا ہے؟ اس کا ایمان اور عمل. ایمان کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اور عمل کیا کہ وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہوا. اب اس کے بعد موسیٰ کا لاٹھی مارنا اور پانی کا نکلنا. خداوند نے کیا کہا؟ لاٹھی مارنا، اور اس نے کیا کیا؟ ایمان رکھ کے لاٹھی ماری، اور کیا نکلا؟ پانی. پھر کیا ہوا؟ ایمان اور عمل. اس کے بعد جو راہب ایک فاشا ہے، اس کے پاس جب جاسوس پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسے اس کو فتح کر سکتے ہیں، اور وہ چھپتے ہیں، تو وہ ان کو چھپنے میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد ان کو دوسرے رستے سے نکال دیتی ہے. اب یہاں پر اس کا بھی ایمان نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس نے وہ ساری خبریں سنی ہیں کہ اسرائیلی کیا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا خداوند ان کے ساتھ ہے، اور وہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا خدا جو ہے وہ ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ رستے بنا رہا ہے. اب اس نے بھی ایمان رکھ لیا، اور ایمان رکھ کے کیا کیا ہے؟ عمل. اور کیا عمل کیا ہے؟ خداوند کے ان لوگوں کو اس نے چھپایا بھی اور جانے کا رستہ بھی دیا. اب آ جاتے ہیں داؤد نبی کی طرف، داؤد بادشاہ کی طرف. داؤد بادشاہ ہر کام خداوند سے پوچھ کے کرتا ہے، خداوند کی حضوری میں بیٹھ کے کرتا ہے، اور اس نے 66 لڑائیاں لڑی اور ایک بھی نہیں ہارا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو ملک غریب نہیں ہوا. یہاں ایک لڑائی ہوئی ہے ابھی ہم نے دیکھا، تو پوری دنیا کو کیا ہو گیا؟ مشکل میں پڑ گئے نا سب. مہنگائی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا. لیکن اس نے کتنی لڑائیاں لڑی؟ 66، اور ایک بھی نہیں ہارا، سب جیتا. یہاں تک کہ بادشاہ بننے سے پہلے جب وہ اس کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو سب کو لے جاتے ہیں، تو وہ پھر بھی تسلی سے خداوند کے حضور بیٹھتا ہے اور خداوند سے پوچھتا ہے کیا میں جاؤں
اور کیا میں ان کو واپس لا سکوں گا؟ تو خداوند نے کیا کہا؟ جا. اور اس نے کیا رکھا؟ ایمان. کیا رکھا؟ ایمان. اور عمل کیا کیا؟ جیسا خداوند نے کہا ویسا اس نے کیا، عمل کیا. اب اس کے بعد آ جاتی ہے داؤد بادشاہ کے بچوں کی باری. وہاں کیا ہوا؟ جو ایمان رکھتے رہے، اس کے مطابق چلتے رہے، وہ اس کے تخت کے وارث ٹھہرتے رہے. اور جہاں گرے عمل ختم، وہاں تخت ختم. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ میرے ساتھ ہیں؟ سمجھ میں ساری بات آ گئی؟ ساری جو ایمان کے مطابق ہم چل رہے ہیں. اب ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر کیا ہے؟ مردہ ہے. اب ایمان اور عمل کیسے ہونے چاہیے یہ ہم دیکھیں گے یعقوب کا ہی عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. آمین. یہ ہے وہ بات جو آج ہمیں سمجھنی ہے. آج سب تیار ہو کیا ہے؟ تیار ہو کیا ہے؟ دیکھا ہوگا شیشہ، لیکن اب کیا لگ رہا ہے؟ کہیں بال تو خراب نہیں ہو گئے؟ میری کہیں کوئی چیز ادھر سے ادھر دوپٹہ کوئی ایسا وہ تو نہیں ہو گیا؟ لیڈیز کو زیادہ شادیوں پہ جانا ہو تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بار بار شیشے کے آگے گھوم پھر کے شیشے کے آگے. کیوں؟ وہ کیا کرتی ہیں؟ شاید بھول جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ کہیں کوئی چیز جو ہم نے میک اپ کیا یا بال بنائے ہیں خراب تو نہیں ہو گئے. اسی طرح اگر عمل نہیں ہے تو کیسے ہیں ہم؟ ایسے ہی. شیشے کے آگے گئے، خود کو دیکھا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے، بھولے اور پھر واپس. اس میں کیا ہم برکت پائیں گے؟ کیا اس میں برکت پائیں گے؟ جن کی مثالیں ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھی ہیں، کیا وہ کبھی آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹے، کبھی خدا سے پوچھا، کبھی بغیر پوچھے کام کر لیا؟ ایسا ہوا؟ نہیں. ان کی زندگیوں میں کیا تھی؟ برکت. آج ہم اگر سوچیں تو ہماری زندگیوں میں ویسی برکت نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. وہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ سنتے تو بہت کچھ ہیں، اس کے بعد کیا نہیں ہے؟ عمل نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس، اس کا پہلا باب اور اس کی 14 اور 17 آیت، تو یہاں پر 14 سے 17 آیت تو یہاں پر لکھا، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک بنو اس لیے کہ میں پاک ہوں. آمین. یہ کیسے ہوگا؟ ہم کیسے پاک بنیں گے؟ جب ہمارا ایمان اور عمل ایک ہو جائے گا، کہنا اور کرنا ایک ہو جائے گا. جب ہم کلام کے حکموں کو سنیں گے بھی، مانیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. ہاللیلویہ. اور ہر انسان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کیا ہو جاؤں؟ کامیاب ہو جاؤں، ساری چیزیں مجھے مل جائیں، سب کچھ مجھے مل جائے. اس کے لیے بھی کلام نے ایک بات کہہ دی. کیا کہہ دی؟ کہ اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو کیا ہوگا؟ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. ان چیزوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ان چیزوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ خود ہی مل جائیں گی. ہمیں بھرنا کس سے ہے؟ روح سے، ایمان سے، عمل سے. جب یہ سب ایک ہو جائے گا تو باقی چیزوں کی پرواہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اب کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے وعدے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. کلام مقدس میں خداوند نے بہت سارے وعدے کیے، اور وہ وعدے جو ہیں جن کا ابھی ہم نے مثال کلام مقدس میں سے دیکھی، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ سارے وعدے ان کی زندگی میں پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابراہیم سے اولاد کا وعدہ پورا ہوا، ٹھیک ہے. اور داؤد سے کہا کہ تیرے بعد تیری اولاد تخت پر بیٹھے گی، پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. سارے وعدے جو کلام میں ہیں وہ پورے ہو گئے.
अब हम चाहते तो बहुत कुछ है। अगर आप रूहानी बरकत चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, उसकी बरकत पाने के लिए एक काम करना शुरू कर दें, रोज़ा रखिए। रोज़ा रखिए, ठीक है, रोज़ा रखिए। रोज़े से क्या होगा? रोज़ा रख के ये नहीं कि रोज़ा रखा, अब क्या करें, टाइम नहीं गुजर रहा, कोई फिल्म देख लें, अब टाइम नहीं गुजर रहा, किसी से फ़ोन पे बातें कर लें, अब टाइम नहीं गुजर रहा, थोड़ा सो लें। ऐसा रोज़ा नहीं। रोज़ा कैसा? रोज़ा कैसा? जो दुआ और कलाम के साथ गुजरे। और फिर क्या होगा? हमारी जिस्मानी और रूहानी तरक्की होगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां और परेशानियां जो है हमारी ज़िंदगी की वो ख़त्म हो जाएंगी। अब आ जाती है रुपए पैसे की बात। हर इंसान चाहता है मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आज के दौर में हर रुपया पैसा, अगर किसी का लालच है तो किसी की ज़रूरत भी है। ज़रूरत है ना। आप दुकान पे जाते हैं, उससे कहते हैं मुझे ये चीज़ दे दें, क्या वो बगैर पैसे के आपको दे देता है? नहीं। आप क्या करते हैं? उसे पैसे देते हैं और उससे वो चीज़ खरीदते हैं। ठीक हो गया। अब जब जो काहिन है, जो पास्टर साहिबान हैं, जो रहनुमा हैं, जब वो कहते हैं कि अपने हदिये नजराने लेकर आएं, अपनी दया यकी लेके आएं, तो अक्सर अब जो लोगों का एक ख्याल हो गया वो क्या है, ये किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए मांग रहे हैं जी। इनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो अब ये हमें कह रहे हैं कि दया यकियाँ दो, अब ये हमें कह रहे हैं अपने हदिये नजराने लेके आओ। ऐसा ही है। लेकिन कलाम ही हमें सिखा देता है कि वो पास्टर्स की तरक्की के लिए नहीं है, वो हमारी अपनी तरक्की के लिए, वो हमारी अपनी बरकत के लिए है। जब हम देखते हैं मलाकी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 10 और 11 आयत, तो यहाँ पर लिखा, हमें बड़े गौर से सुनना है। पूरी दया की जखीरा खाना मिलाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो, इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारे ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावन साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है? देकर मुझे आजमाओ, देकर मुझे आजमाओ। दिल ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। इसके साथ साथ हमारे शुक्रगुजारी के हदिये हैं, हमारे जो नजराने हैं वो खुदावंद के घर आने चाहिए। उससे क्या होती है? बरकत जारी होती है। जो मैंने अपनी जिंदगी की मिसाल आपको दी, वो भी हमने ऐसे ही बरकत पाई है, बिल्कुल ऐसे ही बरकत पाई है। ना सिर्फ हम बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं। आप सोचें कि एक 24-25 साल का लड़का या एक 21 साल का लड़का सैलरी आने पे कहे कि पहले मेरा टाइट और मेरी शुक्रगुजारी आप ले लें, ये बड़ी बात नहीं है कि नहीं है? अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पापा नहीं मानते, हमारा भाई नहीं देता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए, ईमान रख के और अमल दिखाना चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए, दिन का सबसे पहला पहर खुदा के हवाले करना चाहिए। ख़वातीन उठती हैं किचन में, बर्तन धो लो, रोटी बना लो, उसने जाना है, उसने करना है, ये है वो है। सबसे पहला काम ख़वातीन हो या मर्द, एक ही है, और वो क्या है? खुदावंद की हुजूरी में झुकना। हमारी शुरुआत उसके नाम से, और उसके बाद हमारा सोना
सोने से पहले के जो लम्हात हैं वो उसके नाम से होने चाहिए। बरकत क्यों नहीं आएगी? उसने तो वादा कर दिया। लेनी किसने है? हमने खुद। उसने सलीब पर जान देकर, यीशु मसीह ने हमें नजात देकर अपने काम को क्या किया? पूरा किया। अब क्या है? किसके पास इख्तियार है? उसने अपना इख्तियार किसे दिया है? हमें। वो कहता है बरकतों से भरना चाहते हो तो कलाम को पढ़ते जाओ, इस पर अमल करते जाओ और सारी बरकतों को ले लो। क्या वो रखना चाहता है बरकतें? छुपाना चाहता है बरकतें? नहीं। पाक रूह भी वो उंडेल चुका है। पाक रूह भी वो उंडेल चुका है। लेना किसने है? पाना किसने है? हमने। काम हम गड़बड़ करते रहे, अमाल हमारे गड़बड़ हो और हम कहें हमें पाक रूह भी मिल जाए और सारी बरकतें भी मिल जाए, हो सकेगा? नहीं। आपके घरों में आप एक मिसाल छोटी सी ले लें। आप अपने बच्चों में पर दिन में पता नहीं कितने कर्ज जो हैं वो जारी कर रहे होते हैं अपने इस मुंह से, क्योंकि इस मुंह में क्या है? कुव्वत। अमल क्या है आपका? बच्चे का नाम क्या रखा? मूसा। किस ईमान से? कि ये मूसा जैसा हो जाएगा, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या शुरू हो गया घर में? मूसा तो है ही ऐसा, मूसा तो ये है, मूसा तो वो है। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपने मुंह से क्या जारी कर रहे हो? कर्ज को, लानत को। और फिर जब बड़े होके बच्चे वैसे निकलते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं? पता नहीं किधर से चला गया। ऐसा ही है कि नहीं? तो गलती किसकी है? बड़े होके बच्चे नाफरमान हैं, बच्चे नशों में हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, तो गलती किसकी है? माँ बाप की। माँ बाप को बचपन से बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, जो कलाम ने कहा, अपने बेटे की कैसी तरबियत कर, किस राह में? उस राह पर जिस पर आगे जाकर उसे चलना है, तो फिर वो उस तरबियत से ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा। हालेलुया। अब अगर हम ऐसा नहीं करते, ईमान तो रखते हैं, ये ईमान है, ईमान रख लिया, खुदावन गाड़ी भी दे दे, खुदावन फाइनेंशियल बरकत भी दे दे, खुदावन कभी बीमार भी ना हो, ये भी हो वो भी हो, और बस बैठ गए, तो क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम आसमान को तकते रहेंगे और खुदावन हमें तकता रहेगा। हमने एफर्ट ही नहीं की, हमने अमल ही नहीं किया, हमने अपने अमल से उसको खुश ही नहीं किया। माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिला देती है जब तक वो रोए ना? पिलाती है? नहीं। वो रोता है, वो बताता है कि अब मुझे भूख लग गई है। तो क्या आपने अपने बाप को अपने अमल से बताया कि आप क्या चाहते हो? पढ़े लिखे होकर भी कलाम नहीं पढ़ा जाता घरों में, पढ़े लिखे होकर भी आयात रट ली जाती हैं, पढ़े लिखे होकर भी आयात को रट के कहा जाता है बस मैंने आयत बोल दी, अब खुदावन मेरा काम कर देगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। भूल जाएं कैसा होगा, जब तक कि उस पर हम क्या नहीं करेंगे? अमल नहीं करेंगे। उसके मुताबिक हम अमल नहीं। 10 काम सबसे पहले माँ बाप बच्चों को सिखा देते हैं। खुदावन मेरा चौपान है, सिखा दिया। अब क्या है? वो बच्चा क्या कर रहा है? रटे मार रहा है। ऐसा ही है ना? और फिर हमने भी वही सीख लिया, हम भी रटे मार रहे होते हैं। 10 काम को जरा एक एक दिन के लिए एक एक हुक्म को रख के जरा गौर से पढ़िए और फिर उसे समझिए कि हमें करना क्या है। थोड़ा सा झूठ की कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई कोई बात नहीं, तो ये कोई बात नहीं तब तक चलेगी। तो फिर खुदावंद भी कहेगा ठीक है मैं नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं दे रहा, खैर क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप भी वैसे, हम भी वैसे। आजकल क्रिश्चियन लोगों ने एक और काम शुरू कर दिया, एक आयत भेजी, एक दुआ भेजी, इसे 10 लोगों तक भेज दें वरना बरकत मिलेगी, नहीं भेजेंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। क्या हम क्रिश्चियन हैं? ऐसे लोग, क्या ऐसे लोगों को हम क्रिश्चियन कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं। कलाम ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। कलाम गहरा है, कलाम
के भेदों को समझना पड़ेगा। कलाम हमें क्या सिखाता है, हमें सीखना पड़ेगा। और जब खुदा के घर में आए, ये सोच कर आए कि आज हम अपने दिल को खोल कर जाएंगे और जिंदगी की तब्दीली को लेकर आएंगे। हालेलुया। कोई अंधेरे की कुव्वत इसे चुराने ना पाए। और हम फल लेकर आए, कितना कितना 60 और 70 मत कहें, 100 गुना, क्योंकि वो देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। क्या वो कहता है कि मैं थोड़ा दूंगा? नहीं, वो तो कहता है ले लो। उसकी एक मुट्ठी खुलती है और पूरी दुनिया जो है, चरिंद परिंद, इंसान, जानवर सब से रोज़ हो जाते हैं। क्या उसके घर में कोई कमी है? नहीं है। कमी किधर है? हम में। कलाम उसने दे दिया, कलाम में सब कुछ लिख दिया, उसने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। अब अगर हम फिर वो ना करें तो क्या होगा? कुछ भी पा नहीं सकते। मत उम्मीद रखें, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, घुटने टेक लें, जो मर्जी कर लें, वो सुन लेगा, वो भी सुन लेगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा? वक्त। उसमें क्या लगेगा? वक्त। लेकिन जो दुआ कलाम के मुताबिक होगी वो फल लेकर आएगी और जल्दी फल लेकर आएगी, क्योंकि कलाम ही कहता है कि वो ऐसी देर नहीं करता जैसी हम समझते हैं। हालेलुया। अब जब हम देखते हैं कि जब हम अमल करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ उतारता है। मैंने अपनी गवाहियाँ आपके साथ शेयर की, ठीक है? गवाहियाँ आ गई, अब हम गवाहियाँ अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे? गवाही रखते हुए भी हमें एक अमल करना है। वो क्या है? गवाही देनी है, गवाही शेयर करनी है, ताकि दूसरों का ईमान क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। और जब ईमान मजबूत होगा तो क्या होगा? अमल होगा। जब वो आपकी गवाही सुनेगा तो वो भी कहेगा ठीक है, मैं भी अब कलाम पढ़ूंगा, मैं भी अमल करूंगा और मैं भी इस बरकत को पाऊंगा, मैं भी ये गवाही पाऊंगा। अब घरों में क्या होता है? हम बैठते हैं, चुगलियां शुरू कर देते हैं। उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, उसकी जूती अच्छी नहीं थी, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो क्या बेहतर नहीं है कि उस वक्त को हम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी खुशखबरी को फैलाने के लिए इस्तेमाल करें? बेहतर है कि नहीं? बेहतर है। और जब बेहतर होगा तो फिर क्या होगा? हम जबरदस्ती के गुनाहों और गलतियों में फंसेंगे नहीं। और जब फंसेंगे नहीं तो क्या पाएंगे? बरकत पर बरकत पाएंगे। जब हम देखते हैं पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 12 बाब और उसकी पहली दो आयात, तो यहाँ पर लिखा, गौर से सुनना और क्या करना है? हमने अमल करना। लिखा, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन, हालेलुया। जब हमारा यीशु बाप के हुक्मों पर ईमान रख के सलीब चढ़ सकता है, तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? खुदावंद ने खुद करके दिखाया, यीशु ने खुद करके दिखाया कि मैंने बाप के हुक्मों को माना पूरे ईमान के साथ, और उसी ने वो ईमान हम में ट्रांसफर किया। वही ईमान उसने हम में ट्रांसफर किया। ऐसा ही है, उसने ईमान रखा, वो सब जो खुद बाप ने करने को कहा किया। क्या किया? अमल किया। और फिर अब वो कहाँ है? बाप के दाहिने हाथ। और वो क्या चाहता है? जहां वो है वहां हम भी हों। तो कैसे होंगे? अमल, ईमान और अमल। जॉब्स पे जाते हैं हम, छोटी मोटी वो कर जाते हैं, सुस्ती काहली, और फिर कहते हैं जी पता नहीं क्या हुआ है काम में, वो पैसों में वो बरकत नहीं आई। बरकत क्यों नहीं आई? आपके अमल में बरकत नहीं है। आप अपना पूरा दें, पूरी आस पड़ोस जो काम कर रहे हैं आपके,
वो डंडी मारते हैं, वो 80% देते हैं, लेकिन आप अपना क्या दें, पूरा 100% सब जगह। ये भी खुदावंद के नाम की खुशखबरी है जो आप फैला रहे हो अपने अमल से, अपने किरदार से। सलीब लटकाने से कोई मसीही नहीं हो जाएगा, सलीब घर पे लगाने से कोई मसीही नहीं हो जाएगा। मसीही होने के लिए क्या करना है, ईमान रखना है, मुकम्मल ईमान रखना है, और फिर उस ईमान के मुताबिक क्या करना है, हमें अमल करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें किसको तकना है, यीशु। और कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, क्या इनाम है। जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसको तकते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनका इनाम क्या है, अब्दी जिंदगी। इनाम क्या है, अब्दी जिंदगी। पाक रूह वो दे चुका, पाक रूह भी इनाम है, पाक रूह भी वो दे चुका, लेकिन अब आखिरी क्या उसने हमें देना है, अब्दी जिंदगी। और वो अब्दी जिंदगी ऐसे ही नहीं है कि जिसका दिल करे वो दाखिल हो जाएगा। क्रिश्चियन होते हुए भी, अब क्रिश्चियंस ने एक बात और जो हम देखते हैं कि हम क्रिश्चियन सोचते हैं कि हमने क्योंकि तौबा कर ली है, हम यीशु मसीह को मानते हैं, और अब वो जो अगली जिंदगी है वो क्या है, हमारी है, हमने मोहर लगवा ली है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, नहीं। जितनी मिसालें हमने कलाम में से देखी, पुराने अहदनामे में से और नए अहदनामे में अगर हम देखें तो हम रसूलों की मिसाल देख सकते हैं। उन्होंने भी क्या किया, यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, और वो चल पड़े, ईमान रख के चल पड़े, ईमान रखा और अमल किया। और फिर क्या किया, यीशु के साथ रहने का जो फजल है वो पाया, उसको देखने का, उसके साथ रहने का, उससे बातें करने का। और आज हमारे लिए तो सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, कलाम हमारे हाथों में है। वो वक्त भी था जब कलाम जो था वो बहुत कम लोगों के पास था, आज तो कलाम सबके हाथों में है। कमी किस बात की है कि हम कलाम को पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो उस पर अमल नहीं करते, और पढ़कर क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। पढ़कर भूलना नहीं। इसहाक के बारे में क्या लिखा कि वो मैदानों में जाता था, क्या करने, मेडिटेट करने, कलाम पर गौर व खौस करने। आप भी वक्त निकालें कि हम जब फ्री हों, पहले तो सुबह सबसे पहले का वक्त जो है वो खुदा को दें, उसके बाद वो वक्त चुने जब आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, उस वक्त में कलाम को पढ़ें। उस वक्त में मैंने बहुत सी बातों को, बहुत से भेदों को उस वक्त में सीखा है। पाकरू की हजूरी में कलाम को पढ़ें, पाकरू से मदद मांग के कलाम को पढ़ें। कलाम में ही जवाब मिलेंगे, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और जब आप परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कोई बीमारी है, तो आप अपनी उस सिचुएशन के मुताबिक कलाम में से उस पैसेज को निकालें और उसे अपने लिए पढ़ें और उसके मुताबिक खुदावंद से मांगें। आप सबको पता है, एक बात तो सबको पता है, बीमार है तो क्या कहना है, यीशु तेरे कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। तो क्या सिर्फ कहने से शिफा पा जाएंगे? क्या ये सिर्फ आयत बोली और शिफा पा गए? क्या करना पड़ेगा, उस आयत को समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। खुदावंद आज के इस कलाम से हम सबको बरकत दे, हमारी जिंदगियां बदलें, और हम इसको अपने दिल में रखें, इसे हम अपने दिल में रखें, इसे हम भूल ना जाएं, और किसी भी अंधेरे की कुव्वत को जुर्रत ना होने दें कि वो इसे चुरा सके। उसे भी हम ही जुर्रत देते हैं जब हम कोई सुराख छोड़ देते हैं। अगर हम कलाम के मुताबिक चलेंगे तो फिर सारे सुराख बंद हो जाएंगे, उसको जुर्रत नहीं होगी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा उनके ताबे हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, और मुकाबला हर कोई भी नहीं कर सकता। फिर वही बात आ जाती है, जो इसको समझेगा, इस पर अमल करेगा, वो मुकाबला करेगा, और वो हम सब कर सकते हैं। ये नहीं है कि कर नहीं सकते, हम सब कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, जब हम कलाम के मुताबिक अमल करेंगे।
خدا آپ سب کو اپنی سلامتی اور اپنی حفاظت میں